بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے سے سونے مونے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم نے ہیری پوٹر کی پہلی بک ہیری پوٹر اور پارس کے پتھر کا 11واں باب شروع کرنا ہے، جس کا نام ہے کیوڈچ کا مقابلہ۔ تو شروع کر لیتے ہیں۔ نومبر آتے ہی موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اسکول کے چاروں طرف کے پہاڑ برف کی وجہ سے سفید دکھائی دینے لگے اور جھیل کے ٹھنڈے فولاد کی طرح ٹھوس ہو گئی۔ ہر صبح میدان برف سے ڈھک جاتا تھا۔ اوپر کی کھڑکیوں سے ہیگرڈ صاف دکھائی دیتا تھا، جو چچندر کی کھال کے لمبے اوور کوٹ، خرگوش کے بالوں والے دستانے اور اود بلا کے چمڑے والے دیو ہیکل جوتوں میں لیس ہو کر کیوڈچ کے میدان میں جمی ہوئی برف کو جادوئی جھاڑوؤں سے ہٹاتا رہتا تھا۔ کیوڈچ کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ کئی ہفتوں تک مشقیں کرنے کے بعد ہیری ہفتے والے دن اپنا پہلا کیوڈچ میچ کھیلنے والا تھا، جو گریفنڈر اور سلیدرن کے درمیان کھیلا جانے والا تھا۔ اگر گریفنڈر جیت جائے گا تو وہ افریقی چیمپئن شپ میں دوسرے مقام پر پہنچ جائے گا۔ شاید ہی کسی نے ہیری کو کھیلتے دیکھا تھا، کیونکہ ووڈ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہیری کو خفیہ ہتھیار کے طور پر چھپا کر رکھنا ہے۔ لیکن یہ خبر کسی طرح پھیل گئی کہ وہ بطور متلاشی کیوڈچ میچ کھیلنے والا ہے۔ ہیری کو پتہ نہیں تھا کہ کیا زیادہ برا تھا، لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ بہت شاید ہی کسی نے ہیری کو کھیلتے دیکھا تھا، کیونکہ ووڈ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہیری کو خفیہ ہتھیار کے طور پر چھپا کر رکھنا ہے۔ لیکن یہ خبر کسی طرح پھیل گئی کہ وہ بطور متلاشی کیوڈچ میچ کھیلنے والا ہے۔ ہیری کو پتہ نہیں تھا کہ کیا زیادہ برا تھا، لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ بہت شاندار کھیلے گا، یا یہ کہ وہ اس کے نیچے نرم گدالے لے کر دوڑیں گے تاکہ گرنے کی صورت میں اسے چوٹ لگنے سے بچا سکیں۔ یہ سچ مچ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے پاس اب ہرمائنی جیسی دوست تھی۔ ہیری نہیں جانتا تھا کہ اس کی مدد کے بنا وہ اپنا اتنا سارا ہوم ورک کیسے پورا کر پاتا، کیونکہ وہ ٹیم سے آخری منٹ تک ڈھیر ساری مشقیں کرواتا تھا۔ ہرمائنی نے اسے کیوڈچ ابتدا سے مہارت تک نامی کتاب بھی پڑھنے کے لیے دی تھی، جو بہت کارآمد چیز ثابت ہوئی تھی۔ اس کتاب کو پڑھ کے ہیری کو معلوم ہوا کہ کیوڈچ میں بھیڑنے کے 100 طریقے ہیں، اور یہ سبھی 1473 میں ہوئے بین الاقوامی کپ میچ میں استعمال کیے جا چکے ہیں۔ اسے یہ معلومات بھی حاصل ہوئی کہ متلاشی عام طور پر سب سے چھوٹے اور سب سے پھرتیلے کھلاڑی ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ گھمبیر کیوڈچ کے اکثر حادثات انہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی پڑھا کہ لوگ کیوڈچ کھیلتے وقت شاید ہی کبھی مرے ہوں، لیکن کئی ریفری ضرور غائب ہو گئے تھے، جو کئی مہینوں بعد صحارا کے ریگستان میں نظر آئے۔ جب سے ہیری اور رون نے ہرمائنی کی جان پہاڑی تورال سے بچائی تھی، تب سے ہرمائنی قوانین توڑنے کے بارے میں کچھ زیادہ لچکیلی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ رون اور ہیری کے ساتھ اس کے رویے میں بھی خاصی بہتری ہو گئی تھی۔ ہیری کے پہلے کیوڈچ میچ سے ایک دن پیشتر وہ تینوں پڑھائی کے وقفے کے دوران ٹھٹھرتے ہوئے باہر یک بستہ صحن میں گئے۔ ہرمائنی نے اپنی چھڑی کے ساتھ جادوئی کلمے کے ذریعے ایک چمکیلی نیلے رنگ کی آگ جلا لی، جسے ایک مربع کے چھوٹے مرتبان میں ڈال کر محفوظ کر لیا گیا تھا تاکہ وہ تیز جھکڑوں سے بجھ نہ جائے۔ وہ زمین پر رکھے اس مرتبان کی آگ سے ہاتھ تاپ رہے تھے کہ اسی لمحے پروفیسر سنیپ صحن کے قریب سے گزرے۔ ہیری نے فوراً دیکھ لیا کہ سنیپ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ ہیری، رون اور ہرمائنی تھوڑے چپک کر کھڑے ہو گئے تاکہ سنیپ کو مرتبان میں جلتی ہوئی آگ دکھائی نہ دے۔ انہیں یقین تھا کہ جادو کی آگ جلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بدقسمتی سے ان کے چہروں پہ چھائی ہوئی مجرمانہ خوف کی جھلک پروفیسر سنیپ کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہ پائی۔ انہوں نے بھانپ لیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ وہ لنگڑاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ انہوں نے آگ تو نہیں دیکھی، مگر ایسے لگا جیسے وہ کسی بہانے کی تلاش میں تھے تاکہ انہیں وہاں سے دفع کیا جا سکے۔ پوٹر، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پروفیسر سنیپ سرد لہجے میں گرائے۔ اس کے ہاتھ میں کیوڈچ ابتدا سے مہارت تک نامی کتاب دبی ہوئی تھی۔ ہیری نے کتاب ان کی طرف بڑھا دی۔ لائبریری کی کتابیں اسکول سے باہر لے جانا منع ہے، سنیپ نے سرد مہری سے کہا۔ یہ مجھے دو، گریفنڈر کے 5 پوائنٹس کاٹ لیے جائیں گے۔ جب پروفیسر سنیپ لنگڑاتے ہوئے دور چلے گئے تو ہیری غصے میں بڑبڑایا۔ اس نے یہ قانون ابھی بنایا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اس کے پیر میں کیا ہوا ہے۔ کیا پتا، خدا کرے اسے بہت درد ہو، رون نے کڑواہٹ سے کہا۔ اس شام کو گریفنڈر کے ہال میں بہت شور ہو رہا تھا۔ ہیری، رون اور ہرمائنی ایک کھڑکی کے پاس اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرمائنی ہیری اور رون کا جادوئی کلمات والا ہوم ورک دیکھ رہی تھی۔ وہ انہیں کبھی اپنے ہوم ورک کی نقل نہیں کرنے دیتی تھی۔ تم لوگ کس طرح سیکھو گے؟ یہ الگ بات تھی کہ ہرمائنی سے اپنا ہوم ورک پڑھوانے کے بعد ان لوگوں کو ویسے بھی صحیح جواب میسر ہو جاتے تھے۔ ہیری کافی بے چین ہو رہا تھا۔ کیوڈچ ابتدا سے مہارت تک نامی کتاب واپس لینا چاہتا تھا تاکہ اس کا ذہن کل ہونے والے میچ کی فکر سے دور ہٹ سکے۔ وہ سنیپ سے اتنا کیوں ڈر رہا تھا؟ اٹھتے ہوئے اس نے رون اور ہرمائنی کو بتایا کہ وہ سنیپ سے پوچھنے جا رہا ہے کہ کیا اس کی کتاب اسے واپس مل سکتی ہے۔
हम साथ नहीं जाएंगे, तुम अकेले ही जाओ। दोनों ने अपना फैसला सुना डाला। हैरी ये सोच रहा था कि बाकी उस्तादा के सामने स्नेप मना नहीं कर पाएगा। वो नीचे स्टाफ रूम तक पहुंचा तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। शायद स्नेप ने उसकी किताब को वहां पर पड़ा छोड़ दिया हो। कोशिश करके देखने में क्या हर्ज हो सकता है। उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और अंदर की तरफ झांका। उसकी निगाहों ने एक बेहद डरावना मंजर देख लिया था। स्नेप और फिल्च अंदर अकेले थे। स्नेप ने अपने घुटनों को ऊपर उठा रखा था। उसका एक पार उसका एक पैर खून से लुथड़ा हुआ बुरी तरह से जख्मी था। फिल्च पूरे इन्हमाक के साथ स्नेप के पैर पर मरहम पट्टी कर रहा था। बेहद खतरनाक चीज, स्नेप कह रहा था। 3 सिरों वाला कुत्ता, इस पर एक साथ नजर कैसे रखी जा सकती है। हैरी ने दरवाजे को धीमे अंदाज में बंद करने की कोशिश की। पोटर, स्नेप का चेहरा गुस्से के बायस टेढ़ा हो गया। उसने अपने कपड़े जल्दी से नीचे कर लिए ताकि उसका जख्मी पैर छुप जाए। हैरी ने मुश्किल थूक निकला। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे अपनी किताब वापस मिल सकती थी। दफा हो जाओ बाहर, स्नेप गरजता हुआ बोला। इससे पहले कि स्नेप ग्रीफिंडर के मजीद पॉइंट्स काट लेता, हैरी पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। उसने तमाम सीढ़ियां दौड़ते हुए तय की। क्या तुम्हें किताब मिल गई? रॉन ने हैरी को अपनी तरफ आते देखकर पूछा। क्या हुआ? धीमी आवाज में हैरी ने इन्हें बताया कि उसने स्टाफ रूम में क्या मंजर देखा था। तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है? उसने हामते हुए अपनी बात खत्म की। उसने हेलोवीन के दिन 3 सर वाले कुत्ते के पास जाने की कोशिश की थी। जब हमने उसे देखा तो वो वहां जा रहा था, जबकि बाकी उस्ताद स्टाफ रूम में तोराल से निपटने के लिए इकट्ठे थे। स्नेप उस चीज के पीछे है जिसकी हिफाजत वो 3 सर वाला कुत्ता कर रहा है। मैं अपने जादुई बाहरी डंडे को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ कि उसी ने ध्यान बांटने के लिए पहाड़ी तोराल को स्कूल के अंदर घुसाया था। हरमाइनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, उसने जल्दी से कहा। मैं जानती हूँ कि वो ज्यादा अच्छे नहीं हैं, मगर वो इस चीज को चुराने की कोशिश नहीं करेंगे जिसे डंबलडोर महफूज रखना चाहते हैं। हरमाइनी, शायद तुम बहुत भोली हो। तुम तो ऐसे सोचती हो जैसे उस आजा में सभी लोग नेक और पारसा होते हैं, रोन ने जवाब में कहा। मैं हैरी के साथ हूँ। मैं जानता हूँ स्नेप कुछ भी कर सकता है, मगर वो किस चीज के पीछे है और वो कुत्ता किस चीज की हिफाजत कर रहा है। हैरी जब अपने बिस्तर पर लेटने के लिए बढ़ा तो उसके दिमाग में यही सवाल सुलग रहा था। नेवल जोर जोर से खराटे भर रहा था। हैरी की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश की। उसे नींद की जरूरत थी। उसे सुबह चाको चौबंद होना चाहिए था, जो नींद के बाद ही मुमकिन था। कुछ ही घंटों बाद उसका पहला क्यूडिच मैच होने वाला था, लेकिन जब हैरी ने स्नेप का जख्मी पांव देखा था तो स्नेप के चेहरे पर जो तासुरात थे उन्हें भूलना आसान काम नहीं था। अगली सुबह बहुत चमकदार और सर्द थी। बड़ा हाल भुने कबाबों की जायकेदार खुशबू और खुशनुमा गुफ्तगू से भरा पड़ा था। सभी एक अच्छे क्विडिच मैच का बेताबी से इंतजार कर रहे थे। तुम्हें थोड़ा नाश्ता कर लेना चाहिए, रोन ने मशवरा दिया। मैं कुछ नहीं खाना चाहता, हैरी ने इनकार किया। सिर्फ थोड़ा सा टोस्ट ही खा लो, हरमाइनी ने मनाते हुए कहा। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, हैरी ने टका सा जवाब दिया। उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। 1 घंटे बाद वो मैदान में उड़ रहा होगा। हैरी, तुम्हें ताकत की जरूरत है, सीमस फनीगन ने तेजी से कहा। सामने वाली टीम हमेशा मतलाशी को ही सबसे ज्यादा परेशान करती है। शुक्रिया सीमस। हैरी ने देखा कि सीमस इसके कबाबों में ढेर सारी टमाटर चटनी अंडेल रहा था। 11 बजे तक पूरा स्कूल क्यूडिच के स्टेडियम में चारों तरफ बनी हुई नशिस्तें संभाल चुका था। कई तलबा अपनी दूरबीनें साथ लेकर आए थे। हालांकि नशिस्तें काफी ऊपर इसलिए बनाई गई थी कि तमाशाई आसानी से मैच का हाल देख सकें। इसके बावजूद कई बार ये देखना मुश्किल हो जाता था कि खेल में क्या हो रहा है। रोन और हरमाइनी सबसे ऊपर वाली नशिस्तों की कतार में नेवल, सीमस और डीन, जो वेस्ट टीम का बड़ा शदाई था, के साथ बैठे हुए थे। हैरी हैरान रह गया जब उसने देखा कि उन्होंने एक बड़े कपड़े का बैनर उठा रखा था, जो स्केबर्स के नुकीले दांतों से बर्बाद शुदा बिस्तर की चादर से बनाया गया था। इस बैनर पर जल्दी हरूफ में लिखा था, पॉटर ग्रीफिंडर का शेर है। डीन की मुसवरी बेहद अच्छी थी और उसने नीचे ग्रीफिंडर का बड़ा सा शेर बना दिया था। उसके बाद हरमाइनी ने इस पे थोड़ा सा सहर भी कर दिया था ताकि बैनर का हर हिस्सा अलग अलग रंगों में चमकता हुआ दिखाई दे। इस असना में कपड़े तब्दील करने वाले कमरे में हैरी और टीम के बाकी खिलाड़ी अपने सुर्ख रंग के क्यूडिच के लिबास पहन रहे थे। स्लेदरन के खिलाड़ी सब्ज रंग की वर्दी में खेलते थे। ओलिवर वुड ने सबको खामोश कराने के लिए अपना गला खंखार कर साफ किया। लड़कों, ठीक है, उसने कहा।
और लड़कियां। जुड़वा विजली भाइयों ने शोशा छोड़ा। और लड़कियां, यही मौका है, वुड ने खजालत भरे अंदाज में कहा। बहुत बड़ा मौका, फ्रेड वेजली चहक कर बोला। वो मौका जिसका हम सबको इंतजार था। जॉर्ज वीजली ने उसे लुकमा दिया। हमने ओलिवर की तकरीर हमेशा की तरह रटी हुई है, फ्रेड ने बात आगे बढ़ाई। हम गुज़श्ता साल भी टीम में शामिल थे। तुम दोनों खामोश रहो, वुड ने गुस्सीले अंदाज में कहा। बरसों बाद ग्रीफिंडर को इतनी अच्छी टीम मिली है। हम जीतने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। मैं ये बात पहले से जानता हूँ। उसने सबकी तरफ निहायत गुस्से से घूरा, जैसे कह रहा हो वरना। ठीक है, अब वक्त हो गया है, खुशकिस्मती का साथ रहे। हैरी चूंकि कमरे के खारजी रास्ते पे फ्रेड और जॉर्ज के पीछे पीछे बाहर निकला और वो उम्मीद कर रहा था कि कहीं उसके घुटने उसका साथ ना छोड़ दें। जब वो लोग मैदान में पहुंचे तो जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया गया। मैडम होज इस तकरीर की रेफरी थी। वो मैदान के बीचों बीच खड़ी थी और उनका बाहरी डंडा हाथ में दबा हुआ दिखाई दे रहा था। वो दोनों टीमों की आमद का इंतजार कर रही थी। जब सभी खिलाड़ी उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा, तुम सभी कान खोल कर सुन लो, मैं अच्छा और साफ सुथरा खेल चाहती हूँ। हैरी ने देखा कि वो खास तौर पर स्लेदरन के कप्तान मार्कस फ्लिंट को देखते हुए ये कह रही थी, जो चौथे साल का तालिबे इल्म था। फ्लिंट को देख के हैरी को ऐसे लगा जैसे उसकी शरियानों के अंदर तुराल का थोड़ा बहुत खून बह रहा हो। कनखियों से हैरी ने ऊपर हवा में उड़ते हुए बैनर को देखा, जो हजूम के सिरों के ऊपर लहरा रहा था और उस पर चमकते हुए अल्फाज में हैरी का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। उसका दिल उछल पड़ा और उसके अंदर न जाने कहां से हिम्मत ऊद कर आई। चलो, अब तमाम खिलाड़ी अपने अपने भारी डंडों पर सवार हो जाओ, मैडम हूच बोली। हैरी अपनी निम्बस 2000 पर सवार हो गया। मैडम हूच ने अपनी चांदी की सीटी जोर से बजाई। 15 भारी डंडे एक साथ हवा में बुलंद हुए और खेल शुरू हो गया। और पहली ही फुर्सत में कवाफ ग्रीफिंडर की एंजेलिना जॉनसन के कब्जे में चढ़ा गया है। ये लड़की कितनी अच्छी नकाश है और निहायत खूबसूरत भी, एक आवाज स्टेडियम में गूंजी। जॉर्डन, एक गंभीर आवाज सुनाई दी। माफ कीजिएगा प्रोफेसर। वीजली जुड़वा भाइयों का चहीता दोस्त ली जॉर्डन क्यूडिच मैच की कमेंट्री कर रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल उस पर कड़ी निगाह रखे हुए थी और वो चकमा देते हुए आगे बढ़ रही है। उसने ये अच्छा सा पास दिया एलिसा स्पिनट को, जो ओलिवर वुड की एक अच्छी तलाश है। गुज़श्ता साल तक उसका शुमार इजाफी खिलाड़ियों में होता था। एक बार फिर मिस जॉनसन के पास और नहीं, स्लेदरन ने कवाफ को कुफल में पहुंचने से कबल छीन लिया। स्लेदरन के कप्तान फ्लिंट के पास कवाफ आ गया है और वो ग्रिफिंडर के कुफल की तरफ चल पड़े हैं। फ्लिंट कवाफ की तरह उड़े चले जा रहे हैं और वो कुफल के बिल्कुल पास, वो स्कोर करने वाले हैं। और नहीं, ग्रिफिंडर के राखे ओलिवर वुड ने, जो कि टीम के कप्तान हैं, बड़े शानदार तरीके से उनकी कोशिश नाकाम बना दी और क्वाफ एक बार फिर ग्रिफिंडर के कब्जे में पहुंच गया है। ग्रिफिंडर की निकाश कैटिबल के पास क्वाफ पहुंचा। वो उम्दगी से गोता खाती हुई एक बार फिर मैदान में सबसे आगे उड़ रही है। ओहो, उसे यकीनन शदीद चोट लगी होगी क्योंकि उसके सर पर बुफरा हुआ बालजर लग गया है। कवाफ एक बार फिर स्लेदरन के कब्जे में पहुंच गया है। अब एड्रियन पेप्सी तेज रफ्तारी से कुफल की तरफ बढ़ रहा है। उसकी राह एक और बालजर ने रोक ली है, जिसे फ्रेड या जॉर्ज विजली ने उनकी तरफ फेंका था। ये नहीं बताया जा सकता कि दोनों में से किसने। जो भी हो, बहरहाल ग्रिफिंडर पटाओ ने मौके का शानदार फायदा उठाया है और कवाफ एक बार फिर मिस जॉनसन के कब्जे में आ चुका है। सामने खाली मैदान पड़ा है और वो तेजी से चली जा रही है। वो सचमुच उड़ी जा रही है, तेजी से आते हुए बालजर से बचते हुए। कुफल उसके बिल्कुल सामने है। शाबाश मिस जॉनसन। स्लेदरन का राखा बेल्ची डाइव चकरा कर रह गया है और ग्रिफिंडर अपना पहला स्कोर करने में कामयाब हो गया है। ग्रिफिंडर की तालियों की आवाज ठंडी हवा में गूंज उठी, जबकि स्लेदरन की दर्द भरी आह और होंके साफ सुनाई दे रहे थे। चलो, किसको जगा दो, किसी की आवाज सुनाई दी। हैग्रिड। रोन और हरमाइनी अपनी जगह पर सुखड़ गए ताकि हैग्रिड के बैठने के लिए मुनासिब जगह बन सके। मैं अपने झोंपड़े से देख रहा था, हैग्रिड ने अपनी गर्दन में लटकती दूरबीन को थपथपाते हुए कहा, लेकिन तमाशाइयों के हजूम के साथ बैठकर देखने का लुत्फ ही कुछ और होता है। अभी तक सुनहरी गेंद नजर नहीं आई है ना? नहीं, हैरी को अभी तक कुछ करने का मौका नहीं मिल पाया है, रोन ने बताया। उसने अपने आप को मुसीबत से बचाया हुआ है, ये क्या कम है? हैग्रिड ने कहा और अपनी दूरबीन उठाते हुए ऊपर आसमान में इस छोटे से खिलाड़ी की तरफ देखा जो हैरी था। खिलाड़ियों से बहुत ऊपर हैरी मैदान में चारों तरफ मंडला रहा था
और सुनहरी चिड़िया की तलाश में चौकन्ने अंदाज में अपनी निगाहें जमाए हुए था। ऊंची जगह पर हैरी की मौजूदगी इसकी और वुड की खेल के लिए मंसूबाबंदी का हिस्सा थी। तब तक दूर रहना जब तक सुनहरी चिड़िया तुम्हारी नजरों के हल्के में ना आ जाए। हम नहीं चाहते कि तुम पर सही वक्त से पहले ही कोई हमला हो जाए। ओलिवर वुड ने खेल शुरू होने से पहले ही उसे बता दिया था। जब मिस जॉनसन ने ग्रीफिंडर के लिए पहला स्कोर कर लिया तो उसी लम्हे हैरी ने हवा में वो हैरत अंगेज कलाबाजियां खाकर अपनी खुशी का इजहार किया था। जो ही खेल फिर से आगे बढ़ा तो उसकी निगाहें खेल की बजाय सुनहरी चिड़िया की तलाश में भटकने लगीं। वो मैदान के चारों तरफ घूम रहा था। एक बार उसे सोने की झलक नजर आई, लेकिन ये बिजली जुड़वा भाइयों में से किसी एक की कलाई घड़ी के डायल का लश्कारा साबित हुआ। फिर एक बाल्जर ने उसकी तरफ आने का फैसला किया। बाल्जर किसी तोप के गोले की तरह उसकी तरफ लपक रहा था। इससे पहले कि हैरी से धोखा दे पाए, वीजली भाई सरत रफ्तारी से उसका ताक्कुब करने लगे। सब ठीक है हैरी, वो चिल्लाकर बोले और फिर बाल्जर को जरब लगाकर तेजी से मार्क्स फ्लिंट की तरफ उछाल दिया। कवाफ इस वक्त स्लेदरन के कब्जे में है, ली जॉर्डन बोल रहा था। नकाश पेप्सी ने 2 बाल्टरों, 2 वीजली भाइयों और एक नकाश मिस बिल को धोखा देते हुए तेज रफ्तारी पकड़ ली है और वो ग्रीफिंडर के कुफल की तरफ बढ़ रहा है। 1 मिनट, क्या ये सुनहरी चिड़िया थी? तमाशाइयों ने पुरजोर शोर मचाया। जब एंड्राइन पेप्सी ने कवाफ को नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो अपने कंधे के पीछे से सुनहरी चिड़िया को जाते देख रहा था जो उसके बाएं कान के पास से गुजरी थी। हैरी ने उसे देख लिया था। निहायत पुरजोश अंदाज में उसने गोता लगाया और अब वो सोने की झलक के ताक़ुब में उड़ा जा रहा था। स्लेदरन के मुतलाशी टेरेंस हग्स ने भी उसे ताक लिया था। वो दोनों लगभग एक साथ सुनहरी चिड़िया की तरफ झपट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सभी नकाश ये भूल गए थे कि उन्हें क्या करना था और उसकी बजाय वो बीच हवा में खड़े होकर देखने में मसरूफ थे। हैरी हग्स से काफी हद तक तेज रफ्तार था। वो छोटी गोल गेंद को देख सकते थे जो अपने पंख फड़फड़ाती हुई तेजी से आगे महवे सफर थी। उसने अपनी रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। धम, एक आवाज गूंजी। नीचे ग्रीफिंडर के तमाम तमाशाई दिल थाम कर रह गए और फिर वो बिफरे हुए अंदाज में वावेला मचाने लगे। स्लेदरन का कप्तान मार्क्स फ्लिंट ने जानबूझकर हैरी का रास्ता रोका और उसके बाहरी डंडे का रास्ता भटका दिया। हैरी का बाहरी डंडा उसके बाहरी डंडे से मामूली सा टकराया और फिर वो चकराता हुआ हवा में घूमने लगा। हैरी अपनी जान बचाने की कोशिश में मसरूफ था, क्योंकि अगर वो फौरन अपना तवाजुन बहाल ना कर लेता तो उसका गिर जाना यकीनी था। फाउल! ग्रीफिंडर के तमाशाई चीख रहे थे। मैडम हूज ने गुस्से से फ्लिंट को डांटा और ग्रीफिंडर के हक में एक फ्री शॉट का ऐलान किया। स्लेदरन के कुफल के बिल्कुल एंड सामने इस तमाम झमेले में जाहिर था सुनहरी चिड़िया एक बार फिर खो चुकी थी। नीचे स्टेडियम में बैठा डीन थॉमसन गला फाड़कर एहतजाज कर रहा था। उसे बाहर निकालो रेफरी, उसे सुर्ख पत्ता दिखाओ। ये फुटबॉल नहीं है डीन, रोन ने उसे याद दिलाया। क्यूडिच के खेल में खिलाड़ियों को बाहर नहीं निकाला जाता है। वैसे ये सुर्ख पत्ता क्या चीज होती है? हैग्रिड इस मामले में डीन की तरफदारी कर रहा था। इन्हें खेल के कवानीन में इस्तेलाह करनी होगी। फ्लिंट की हरकत की वजह से हैरी नीचे गिर सकता था। ली जॉर्डन भी अपने आप को जानबदारी से बचा नहीं पाया था। तो इस वाज़े काबिले मुजम्मत फेल के बाद जॉर्डन प्रोफेसर मैगोनागल गुराई। मेरा मतलब है हम साफ और घटिया फाउल के बाद ली जॉर्डन ने अल्फाज बदले। जॉर्डन, मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ, प्रोफेसर मैगोनागल गुस्से से गरजी। ठीक है। फ्लिंट ने ग्रीफिंडर के मुतलाशी को लगभग जान से मार ही दिया था, लेकिन मुझे अंदाजा है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए ग्रीफिंडर को एक फ्री शॉट मिल चुकी है जो स्पिनेट ने लगाई और इसे कवाफ को कुफल में डालने में कामयाबी हासिल कर ली। बगैर किसी दिक्कत के ग्रीफिंडर को एक स्कोर मिल गया है। खेल आगे चल रहा है। कवाफ अब भी ग्रीफिंडर के कब्जे में है। जब हैरी ने संभल कर एक और बाल्जर को चकमा दिया जो उसके सर के पास से खतरनाक अंदाज में गुजर गया था, उसी वक्त अचानक ये रोनुमा हुआ। हैरी का भारी डंडा खुद ब खुद हवा में तेज झटकों के साथ हिचकोले खाने लगा। एक पल के लिए तो उसे ऐसे लगा कि वो गिरने ही वाला है। उसने अपने दोनों हाथों और घुटनों से भारी डंडे को मजबूती से पकड़ लिया। पहले इस तरह के झटकेदार हिचकोले कभी नहीं लगे थे। कुछ ही पलों बाद ये सिलसिला दोबारा जुड़ गया। ऐसा लग रहा था भारी डंडा खुद उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हकीकत तो ये थी कि निम्बस 2000 में ऐसी कोई खामी नहीं थी कि वो अपने सवार को नीचे गिराने का फैसला करता। हैरी ने वापस पलटकर ग्रीफिंडर के कुफल की तरफ जाने की कोशिश की। उसकी ख्वाहिश थी कि वो वुड के पास पहुंचकर उसे कुछ वक्त के लिए खेल रुकवाने के लिए कहे, और उसी वक्त उसे यह संगीन एहसास हुआ कि उसका भारी डंडा मुकम्मल तौर पर उसके काबू से बाहर हो चुका था। वो उसे घुमा नहीं सकता था और उसे किसी भी सिमत में हरकत नहीं दे सकता था। भारी डंडा हवा में हचकोले खा रहा था और थोड़े थोड़े वक्फे से जबरदस्त किस्म के झटके दे रहा था।
جس کی وجہ سے وہ اس پر ادھر سے ادھر لڑک جاتا تھا۔ لی جارڈن اب بھی اپنی کمنٹری جاری رکھے ہوئے تھا۔ کواف اب سلیدرن کے قبضے میں ہے، فلنٹ اسے لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اس نے سمینٹ کو پاس دے دیا، پھر بل کو پاس ملا، اور نہیں، ایک بالجر اس کے چہرے پہ شدید انداز میں ٹکرا گیا ہے، امید ہے اس کی ناک ضرور ٹوٹ گئی ہوگی۔ صرف مذاق کر رہا تھا پروفیسر، اور سلیدرن نے گریفنڈر کے خلاف سکور حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ سلیدرن کے تماشائیوں میں جیسے جوش بھر گیا تھا، وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور بلند آواز میں اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہیری کا بھاری ڈنڈا عجیب حرکتیں کر رہا تھا، وہ اسے دھیرے دھیرے خوفناک اونچائی پر لیے جا رہا تھا، کھیل سے بہت دور، اوپر، وہ اٹھتے ہوئے بری طرح ہچکولے لے رہا تھا۔ ہیری کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، نہ جانے ہیری کیا کر رہا ہے۔ اس نے اپنی دوربین میں اس کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا بھاری ڈنڈا اس کے قابو میں نہیں رہا، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیگرڈ نے متفرقانہ انداز میں کہا۔ اچانک اسٹیڈیم میں چاروں طرف لوگ ہیری کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ اس کا بھاری ڈنڈا اب ہوا میں پٹکیاں کھا رہا تھا، اور ہیری کسی طرح بس اسے پکڑے ہوئے تھا۔ اسی لمحے تماشائیوں کے لب سل گئے اور انہیں اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی معلوم ہونے لگیں۔ ہیری کے بھاری ڈنڈے نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور پھر ہیری سنبھل نہ سکا، وہ بھاری ڈنڈے سے پھسل کر نیچے جھول گیا۔ وہ اب دونوں ہاتھوں سے دستے پہ اپنی گرفت جمائے ہوئے لٹک رہا تھا۔ بھاری ڈنڈے نے ایک اور خوفناک جھٹکا لگایا اور ہیری کا ایک ہاتھ دستے سے اکھڑ گیا، اس کا دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ جب فلنٹ نے اسے ٹکر ماری تھی تو کہیں اس کے بھاری ڈنڈے کے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ سیمس نے پریشان انداز میں اپنا اندازہ ظاہر کیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہیگرڈ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ طاقتور تاریک جادو کے علاوہ کوئی بھی چیز بھاری ڈنڈے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ نمبس 2000 کے ساتھ یہ کام کم از کم کوئی بچہ نہیں کر سکتا۔ جب ہرمائنی نے ہیگرڈ کی بات سنی تو اس نے ہیگرڈ کی دوربین چھین لی، لیکن ہیری کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ ہڑبڑا کر تماشائیوں کے ہجوم میں دیکھنے لگی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ رون نے حیرت سے پوچھا، جس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ میں جانتی تھی، ہرمائنی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ سنیپ کی طرف دیکھو۔ رون نے دوربین لی۔ سنیپ ان کے سامنے والی حصے کی نشستوں میں بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنی آنکھیں ہیری پہ جما رکھی تھیں اور وہ دھیمے دھیمے لگاتار کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ کچھ کر رہا ہے، وہ بھاری ڈنڈے پہ جادو کر رہا ہے، ہرمائنی نے تیزی سے کہا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رون نے ہونکوں کی طرح سوال کیا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دو، ہرمائنی نے جلدی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ رون کچھ اور پوچھ پاتا، ہرمائنی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ رون نے اپنی دوربین پھر ہیری کی طرف گھمائی، اس کا بھاری ڈنڈا اب اتنی رفتار میں تھرتھرا رہا تھا کہ اسے زیادہ دیر تک لٹکے رہنا بے حد دشوار کن بات تھی۔ سارے تماشائی اب کھڑے ہو گئے تھے اور دہشت بھری نظروں سے ہیری کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ویزلی جڑواں بھائی اس کوشش میں جٹے ہوئے تھے کہ وہ کسی طرح ہیری کو اپنے بھاری ڈنڈے پر بٹھا سکیں۔ ہیری کا بھاری ڈنڈا اس قدر تیزی سے مچل رہا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو پایا۔ جوں ہی وہ اس کے قریب پہنچتے تو وہ ہیری کو ساتھ لیے اچھل کر ان کی حدود سے دوسری طرف لپک جاتا۔ بھاری ڈنڈا ہیری کو مزید اونچائی پر لے جا رہا تھا۔ ویزلی بھائی ہیری کے بھاری ڈنڈے کے بالکل نیچے دائروی انداز میں چکر کاٹنے لگے تاکہ ہیری کے گرنے کی صورت میں اسے جھپٹ کر پکڑ سکیں۔ یہ بے حد دشوار اور خطرناک کام تھا۔ اس دوران مارکس فلنٹ نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور کواف کو اپنے قبضے میں لے کر اوپر تلے گریفنڈر کے قفل میں 5 سکور کر دیے۔ اسے ہیری کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہرمائنی، جو بھی کرنا ہے جلدی کرو۔ رون بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ ہرمائنی لوگوں کو دھکیلتے ہوئے اس نشست تک جا پہنچی جہاں پروفیسر سنیپ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کے پیچھے والی قطار میں دوڑتی چلی گئی۔ جب اس نے اگلی قطار میں بیٹھے پروفیسر کیورل کو سر سے ٹکر ماری تب بھی وہ معذرت کے لیے وہاں نہیں رکی تھی۔ سنیپ کے پاس پہنچتے ہی وہ جھکی، اپنی چھڑی باہر نکالی اور کچھ منتخب الفاظ بڑبڑائے۔ اس کی چھڑی سے چمکیلی نیلی آگ نکلی اور اس نے اجلے سے سنیپ کے کپڑوں کے سرے پر آگ لگا دی۔ سنیپ کو آگ کا احساس ہونے میں تقریباً 30 منٹ لگ گئے تھے۔ اسی اثنا میں آگ پوری بھڑک چکی تھی اور تمام کپڑوں پر پھیل گئی۔ اس کے اچانک چیخنے کی آواز نے ہرمائنی کو بتا دیا تھا کہ اس کا کام منطقی انجام کو پہنچ چکا تھا۔ ہرمائنی نے بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ اس نے سنیپ کے کپڑوں پر پھینکا گیا نیلا شعلہ چھڑی کے ساتھ واپس کھینچا اور اسے اپنی جیب میں رکھی ہوئی چھوٹی شیشی میں مقید کر لیا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئی تو اس نے وہاں سے لوٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی۔ یہ یقینی بات تھی کہ سنیپ اب کسی بھی طرح یہ سراغ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا تھا۔
इतना काफी था। ऊपर हवा में हैरी का भारी डंडा यकरक साकित हो गया और हैरी को झूलते हुए उस पर वापस सवार होने में जरा भी दुश्वारी पेश नहीं आई। वो घबराया हुआ था। नेवल, अब तुम ऊपर देख सकते हो, रॉन ने खुशी से उसे कहा। नेवल गुज़श्ता 5 मिनट से हैग्रिड की बालों वाली जैकेट में सर घुसाए बुरी तरह सुबक रहा था। जब हैरी जमीन की तरफ तेजी से उतर रहा था तो तमाशाइयों ने देखा कि उसके गाल गुब्बारे की तरह फूले हुए थे। उसकी आंखें बाहर निकली पड़ी थीं, गर्दन में अजीब सा अकड़ाव था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके मुंह में कै भर गई हो और वो मुंह से कै उलटने को रोके हुए हो। वो अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों के बल मैदान में कूद गया। वो बुरी तरह से खांसा और उसके हाथ मुंह की तरफ बढ़े। फिर उसके मुंह से कोई सुनहरी चीज निकल कर गिरी। मैंने सुनहरी चिड़िया पकड़ ली है, वो खुशी से झूमता हुआ बोला। उसने सुनहरी चिड़िया को हाथ में पकड़कर सर से बुलंद करते हुए तमाशाइयों की तरफ लहराया। वो यूं तो जबजुब के आलम में खेल खत्म हो गया। उसने उसे पकड़ा नहीं है, बल्कि उसने उसे करीबन निगल लिया है, स्लेदरन के कप्तान मार्कस फ्लिन ने एहतजाज करते हुए कहा। उसका ख्याल था कि सुनहरी चिड़िया को हाथों से पकड़े बगैर खेल को खत्म कर देना कवानीन के मुताबिक नहीं था, मगर उसके एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हैरी ने क्विडिच का कोई कानून नहीं तोड़ा था। ली जॉर्डन फरते मुसर्रत से अब भी चीख चीख कर ऐलान कर रहा था। ग्रीफिंडर 60 के मुकाबले में 170 पॉइंट से जीत गया था। हैरी ने इस बारे में कुछ भी नहीं सुना। वो तो हैग्रिड के झोंपड़े में बैठकर रोन और हरमाइनी के साथ कड़क चाय नोश करने में मसरूफ था। ये सब स्नेप की कारस्तानी है, रोन ने जल्दी से कहा। मैंने और हरमाइनी ने उसे देखा था। वो तुम्हारे बाहरी डंडे पर जादू कर रहा था, बड़बड़ा रहा था और तुम पर से अपनी नजरें नहीं हटा रहा था। ये सब बकवास है, हैग्रिड ने कहा, जो चाय को केतली को आग पर दोबारा रखने में मसरूफ था। स्नेप इस तरह का काम क्यों करेगा, हैग्रिड ने बेयकीनी के आलम में कहा। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। हैरी ने फैसला किया कि सच बताना ही ठीक रहेगा। मैंने उसका एक खुफिया राज जान लिया था, उसने हैग्रिड को बताया। उसने हैलोवीन के दिन 3 सिरों वाले कुत्ते को पार करने की कोशिश की थी, जिसने उसे काट लिया। हमारा ख्याल है कि स्नेप उस चीज को चुराने की कोशिश कर रहा है जिसकी वो कुत्ता हिफाजत कर रहा है। अचानक हैग्रिड के हाथ से चाय की केतली गिर पड़ी। तुम फ्लॉफी के बारे में कैसे जानते हो, वह हैरत से हक्का बक्का बोला। फ्लॉफी, तीनों ने एक साथ कहा। हाँ, वो मेरा कुत्ता है। मैंने उसे एक आदमी से खरीदा था जिससे मैं गुज़श्ता साल एक रेस्तोरां में मिला था। मैंने उसे डंबलडोर को हिफाजत करने के लिए उधार दे रखा है। मगर क्यों, हैरी ने ताज्जुब अंगेज लहजे में चौंक कर पूछा। देखो, अब मुझे मजीद कुछ नहीं पूछना, ये इंतहाई अहम और खुफिया बात है, हैग्रिड ने रूखेपन से जवाब दिया। लेकिन स्नेप उसे चुराना चाहता है, वो मुसलसल इस कोशिश में मसरूफ है। ये बिल्कुल बेहुदा ख्याल है, हैग्रिड ने दोबारा कहा। स्नेप हॉगवर्ड के जिम्मेदार उस्ताद हैं, वो इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते, समझे? तो फिर उसने हैरी को जान से मारने की कोशिश क्यों कर की, हरमाइनी ने चीख कर कहा। दोपहर के इस खौफनाक हादसे ने हैरत अंगेज तौर पर प्रोफेसर स्नेप के बारे में उसके ख्यालात बदल डाले थे। मैं अब पहचान सकती हूँ कि कब जादू किया जा रहा होता है। हैग्रिड, मैंने इस बारे में सब कुछ पढ़ा है। जादू करते वक्त आंखों का इर्तिकाज नहीं टूटना चाहिए और स्नेप पलकें नहीं झिपका रहा था। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, हरमाइनी ने एहतजाज करते हुए कहा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सब गलत सोच रहे हो, हैग्रिड ने तैश में आते हुए कहा। मैं नहीं जानता कि हैरी के भारी डंडे ने इस तरह की हरकत क्यों कर की, लेकिन स्नेप कभी किसी तलबा को मारने की कोशिश नहीं करेगा। अच्छा, अब तुम तीनों मेरी एक बात गौर से सुन लो। तुम इन चीजों में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हो जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये खतरनाक बात है। तुम कुत्ते के बारे में भूल जाओ, इस बारे में भूल जाओ कि वो किस चीज की हिफाजत कर रहा है। ये तो प्रोफेसर डंबलडोर और निकोलस फ्लेमेल के बीच का मामला है। ओह, हैरी ने जल्दी से कहा। तो कोई निकोलस फ्लेमेल भी इसमें शामिल है ना? हैग्रिड के मुंह से निकल जाने वाली बात पर वो खुद भी परेशान और नाराज दिखाई दे रहा था।